privilege to extend a heartfelt welcome to all of you as we gather here for this highly anticipated interactive session on the fascinating and transformative topic that is AI in healthcare. This session holds the promise of exploring how cutting edge technology is revolutionizing our field, and I'm delighted to see such an enthusiastic audience today. First and foremost, I extend my deepest gratitude and a cordial welcome to our esteemed guest speaker, Dr. Vijay Tiwari, sir. He has done MD and FACP, that is Fellowship in American College of Physician. He is a distinguished physician, educator, and expert in augmented intelligence and predictive analytics. A key contributor to advanced alert monitoring programs at Kaiser Permanente. Dr. Tiwari, sir, has over 25 years of experience mentoring medical students and healthcare professionals globally. He completed his medical education in India and internal medicine residency in California, and now serves as hospitalist and a senior partner with the Permanente Medical Group and associate professor of medicine at Drexel and Toro Universities. He is prolific author with numerous contributions to medicine literature. Dr. Tiwari's leadership and dedication continues to shape the future of healthcare, innovation, and education. So let's welcome Tiwari sir with a huge round of applause. All right. I would also like to express my profound respect and admiration for our distinguished Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh sir, who has always been a beacon of inspiration, who has been always an inspiration for students and faculty alike. Under his visionary leadership, our institution has constantly embraced the future of medical education and healthcare. It is due to his relentless drive for excellence that sessions like these become a reality, bridging the gap between education and innovation. Sir, your unwavering support and commitment to fostering a culture of holistic learning and curiosity are deeply appreciated. I extend I extend my warm welcome to all respected dignitaries present today, like Registrar Sir, Principal Sir, all the faculties whose unwavering kindness and constant support serves a pillar of strength of our institution. Finally, to our dear students, your, you represent the future of medicine, a future that will undoubtedly intertwine human expertise with the power of artificial intelligence. Today's session is a golden opportunity for you to gain insight into how AI is shaping medical education, screening, diagnostics, treatment plans, and patient care, and how you can be a part of this exciting transformation. As we embark on this session, I encourage all of you to engage wholeheartedly. Let's ask questions, challenge ideas, and absorb as much as we can. Remember, the fusion of medicine and technology is not just about tools, it is about creating a world where healthcare is smarter, more efficient, and more accessible for all. With that, I once again welcome you all. Let us make this session an inspiring and enriching experience for everyone. Now, without further delay, let's invite our honorable guest speaker, Dr. Vijay Tiwari, sir, with a huge round of applause. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Can you hear me? Yes, sir. Oh, you all can hear me? Yes, sir. All right. Can everybody hear me at the back? Yes, sir. All right. Perfect. Perfect. Excellent. Yeah, because I care for people who are sitting at the back. पहले तो ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए कि जिन जिन को हिंदी में परेशानी है. Those who want me to speak only in English. No one. Did I get it right, Pooja? Yes, sir. Yes, sir. हिंदी में किसी को प्रॉब्लम है? Anybody has problem in understanding Hindi completely? अच्छा. No, sir. You can carry forward with any language.
किसी को अंग्रेजी में प्रॉब्लम है इफ आई स्विच बैक एंड फोर्थ इन इंग्लिश एंड हिंदी? एनी शो ऑफ हैंड? परहैप्स नो। ओह ओह माय गॉड। सर, सर देखिए, हम पिछले वो सर की तरफ कैमरा कीजिए जिन्होंने हाथ उठाया था, ऑन योर राइट साइड। या, प्रणाम। सर, मैं पिछले 25 सालों से यूएस में हूँ, और राव सर, जितनी हिंदी आती है उतनी ही बोल पाऊंगा, उसके बाद तो आप देख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं ये कह रहा था कि पीछे वालों का मैं बहुत केयर करता हूँ, बिकॉज देर इज एसोसिएशन इन इंडिया, इट्स कॉल्ड बैक बेंचर सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड आई वाज अ एस्टीम्ड पार्टनर ऑफ दैट। सो बैक बेंचर सोसाइटी जो है उनको निखारना बहुत ज़रूरी है। So, first of all, thank you, Pooja, for very, very, very kind introduction. Thank you, और sir. Thank you so much. और कुलपति सर, राव सर, इन्हीं दो लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है, तो दोनों को करबद्ध प्रार्थना है, आप लोगों ने हमें बुलाया। अम, बच्चों, एक एक चीज़ ये है कि इसमें ये जो सेशन है, इट इज़ एब्सोल्युटली इनफॉर्मल सेशन। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है इस मेडिसिन के फील्ड से। जिस तरीके से मैं ट्रेंड हुआ था एज अ फिजिशियन, वो एक हमारी पहचान होती थी आला, स्टेथोस्कोप। वो आला है तभी हम डॉक्टर हैं, आला नहीं है तो डॉक्टर नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अमेरिका में हम लोग अब स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं। वी डोंट इवन यूज स्टेथोस्कोप, वी यूज़ अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राम। आई हैव अ प्रोब। आई विश मैं गोरखपुर में था कुछ घंटों के लिए, और अगर मुझे पता होता तो मैं आके आपको दिखा भी सकता था। अगली बार आऊँगा तो फिर दिखाऊंगा। It's called point of care ultrasound. So world is changing very fast, and world is changing for good. क्योंकि हम लोगों के लिए एक मरीज ये होता था कि जब आता था तो हम लोग उसको डायग्नोज करते थे, ट्रीट करते थे। टुडे व्हेन यू आर गेटिंग अ पेशेंट, half of the diagnosis is already done, and you just have to focus on treatment. Um, Let me start with one question. ये खास तौर से हमारे बच्चों के लिए है कि आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एनीबडी? जस्ट फ्यू आंसर्स, आई वांट टू हियर फ्यू आंसर्स। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, ओके। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, या किसी के लिए भी क्या होगा? आप बोलिए बस, यू जस्ट शाउट इट, somebody will tell me. Let's not waste time on this. फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ, तीनों हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। यस। Okay, ठीक है. Just shout it and somebody can tell me over the phone, because let's not waste time on this. Anybody else? So physical, mental, social health. Any different answer? All right. Sir, health and money also. Health and money. That's true. Money in terms of rupees or dollars? चलो ठीक है, वो हम करेंसी बाद में डिसाइड करेंगे. So usual answer is education, mental health, physical health, emotional health, economical health. All these are good answers. But to tell you the truth, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी खुद की जिंदगी. हमारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि हम हैं तभी तो जिंदगी बचेगी, तभी तो आप देखोगे. तो बच्चों, ये एक लौता प्रोफेशन है, द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें कि कोई मरीज आपके पास आता है और अपनी जिंदगी अपने हाथों से आपको सुपुर्द करता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी बचा लीजिए. आपको इस प्रोफेशन के अलावा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि आप किसी की जिंदगी को इतने करीब से छू सकेंगे, समझ सकेंगे, बचा सकेंगे. एंड दैट मेक्स अस क्लिनिशियंस अ वेरी स्पेशल पीपल. क्योंकि दुनिया में कोई भी इतना विश्वास कभी किसी पे नहीं करता है. तो एक बात याद रखना बच्चों, कि
जब कोई अपना सर्वस्व आपको सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर आपके दिमाग में और कुछ है सिवाय उनकी सेवा करने का, तो आप गलत रास्ते चल पड़े। वी आर इन दिस प्रोफेशन टू सर्व, एंड दैट्स ऑल। सो वन थिंग यू मस्ट नो, यू ऑल आर वेरी स्पेशल। आगे आने वाली जिंदगी में आप लोग इतने बढ़िया बनने जा रहे हो कि लोग अपनी जिंदगी आपको सौंपेंगे। तो दैट मेक्स यू वेरी स्पेशल। नाउ लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माई स्लाइड। हैव यू enabled sharing? Okay, Zoom. Where is my presentation? Yes, sir. The permission is there. Yes, sir. Loud. We can see your slides. You can see my slide, and let me see if I. Okay, can you guys see it? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. बच्चों, I am a big क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से कि कल रात को 10 बजे बैठ के मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, क्योंकि कल मीटिंग्स करते करते बहुत देर हो गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट एआई का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, और उसको आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आई कॉल इट ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल तो कुछ है ही नहीं। जो भी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं। सो वी ऑगमेंट ऑन समथिंग। तो ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है, ये दो पार्ट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और उसमें मेडिसिन में हमारी क्या हेल्प होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? डू यू गाइस सी इट एडवांस्ड? डू यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों देखो, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे कह लीजिए कि प्रोडक्ट का नाम है जो कि हमारे और मशीन के बीच काम करता है। तो जो भी हमने सीखा है और जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके बीच में काम करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस इज लाइक योर प्रोफेसर। जो आपके मेडिसिन के, सर्जरी के, ओबीजीवाईएन के, पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर्स हैं ना, आप जब कोई केस उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आपकी बातों को सुनते हैं, लेकिन आपको जितना पता होता है आप सब बता डालते हो। बट देन योर प्रोफेसर एड्स समथिंग टू दैट, कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, अरे नहीं ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये हो सकता है। तो ये वो प्रोफेसर हैं जिनको बहुत पता होता है। इनको हर वो चीज़ पता है जो आज तक के ज़माने में निकाली जा चुकी है, इजाद की जा चुकी है। तो उसको आप ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के नाम पे बता सकते हो कि दिस इज व्हाट इट इज। सो व्हाट इट डज, आप कभी कोई गलती करते हो एज अ स्टूडेंट, दे विल करेक्ट यू कि बेटा ये गलत है, इसका सही तरीका ये हो सकता है। दूसरा, कि अगर वो चीज़ जो गलत आप करने जा रहे थे, किसी का हार्म होने जा रहा था, वो बच जाता है, तो इससे हम लोगों के जो पेशेंट्स की जो हम केयर करते हैं, वो बेहतर होता है, कि आउटकम इज बेटर, पेशेंट गेट्स बेटर फास्टर, पेशेंट गेट्स ट्रीटेड बेटर, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी चीज़ अगर हम नौसिखिए होते हैं, जैसे मेरे टाइप के लोग, हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं हर दिन, तो कई बार हम लोग चीज़ रिडंडेंट करते हैं, बार बार करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ें बच जाती हैं, क्योंकि एक बार अगर हो चुका है तो वो इंटेलिजेंस आपको बता देगा, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर बता देंगे, बेटा ये हम कर चुके हैं टेस्ट, वाई आर वी रिपीटिंग दिस, लेट्स नॉट रिपीट इट, वी हैव द रिजल्ट्स। सो दैट बेसिकली डिक्रीजेस द टाइम टू ट्रीट द पेशेंट। ओके, नाउ ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस वो प्रोफेसर साहब हो गए। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये है बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि आपका विद्यालय है, वो विद्यालय, आई विश मैं आपको वो कहानी बता पाता जो आज से 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बताई थी हमको। इस विद्यालय, इस अस्पताल का एक बहुत ही गजब का हिस्ट्री है, एंड यू मस्ट लिसन टू द स्टोरी बाय राव सर। राव सर को ये सब पता है, क्योंकि इसमें वो भागीदार रहे हैं। तो कभी उनसे ज़रूर आप लोग एक स्पेशल क्लास करवा के पूछिएगा कि ये अस्पताल बनाया क्यों गया था और कैसे बनाया गया था। इस पे मुख्यमंत्री जी को बहुत डांट भी पड़ी थी उनके गुरुजी से, क्योंकि ये अस्पताल बनाया जाना था 10 बेड का, और उन्होंने बनवाया था 100 बेड का, क्योंकि वो जानते थे कि मरीजों को ज़रूरत है, और उसके लिए उनके गुरुजी ने बहुत डांटा था। ये एक अच्छी कहानी है, यू शुड नो, because you all are part of this journey now. You are part of this hospital, you are part of this journey to treat the same patients or the same
mob of people that were supposed to be treated through this hospital. So welcome to the hospital again. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऐसा है कि जैसे इस अस्पताल में, ये पहला अस्पताल है पूर्वांचल का जहां पर कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होना शुरू हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना शुरू हुआ था, प्लाज्मा थेरेसिस करना शुरू किया गया था, डायलिसिस वहाँ पे पहली बार शुरू हुआ था. So this is a very unique hospital, which was started at a very humble beginning and has grown to a level that now we are a medical school. Predictive analytics वो है कि जैसे जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें हमने सीखने का मतलब होता है कि अच्छा करना और गलती करना, सही करना और गलत करना. तो जो चीज़ें हमसे गलतियां हुई हैं पहले, उसको हम डेटाबेस में डाल देते हैं कि साहब अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें ये गलत हो जाएगा. एंड दिस टूल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इज अ टूल विच विल नॉट अलाउ यू टू डू मिस्टेक्स अगेन, द सेम मिस्टेक्स. नई मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पुरानी कोई गलतियां हैं वो आपको अलाउड नहीं है करनी. एंड दिस टूल एक्चुअली मेक श्योर कि भाई, अब जैसे जो लोग थोड़ा सा मेडिसिन जानते हैं, बच्चों, आपके कई बच्चों के पेरेंट्स फिजिशियंस होंगे या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, तो आपको शायद ये पता होगा, या जो नहीं भी होंगे शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा. कोई भी आता है वो लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन लेके, वी ट्रीट दैट एज अ पेन बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज, एंड वी ट्रीट देम इन अ डिफरेंट पैथ. And somebody who comes with the chest pain on the right side, it's because of some other disease, unless they have dextrocardia, which is heart is on the right side, we treat them differently. तो इस तरीके से chest pain is same, but the treatment is different based on our experience. तो इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कभी भी आपको गलती नहीं करने देगा, जो हम कर चुके हैं पहले. दूसरा कि जो पेशेंट, मान लीजिए कि अगर अक्यूटली आया, कोई पेशेंट ऐसा आया कि जिसका राइट साइड पैरालाइज्ड है या वो उनको बोलने में परेशानी है, दिस एनालिटिक्स टूल विच इट विल टेल यू कि भाई जल्दी करो, टाइम इज ब्रेन, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग स्ट्रोक, यू गॉट टू एक्ट फास्टर. एंड इफ यू से नहीं 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 रुकिए, वो थोड़ा सा बोलने ही परेशानी है ना, बात पहले हम करते हैं, शायद हिंदी नहीं भोजपुरी बोलते होंगे, अच्छा नहीं अंग्रेजी बोलते, ये सब नहीं. आप जो गलतियां कर चुके हैं पहले वो सब नहीं करने देगा, ये आपको बताएगा कि नहीं, यू गॉट टू मूव फास्ट, यू गॉट टू डू थिंग्स डिफरेंटली सो दैट द आउटकम इज डिफरेंट. और लास्ट चीज ये आपको ये सहायता करता है कि आपने अगर मान लीजिए कि निमोनिया के पेशेंट को आपने ट्रीट किया है, तो ये टूल आपको बताता है कि निमोनिया किस ऑर्गेनिज्म के कारण ज्यादातर होता है. मोस्ट कॉमन इज दिस, सेकेंड मोस्ट कॉमन इज दिस, थर्ड मोस्ट कॉमन इज दिस. It works with this antibiotic, other antibiotic is this, third antibiotic is this. This person is coming from this sect of the population, so you should choose this antibiotic because उस ग्रुप में इन एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस है. ये सारी चीज़ें आपके सामने वो एक टेबुलाइज्ड फॉर्म में लाके रख देगा, कहेगा भैया चूज करो. ऐसा जैसे कि नहीं होता है, आपको एक प्लेट में लाके कोई बढ़िया बढ़िया आपके व्यंजन दे दे एंड यू चूज विच वन टू पिक. आई एम श्योर दैट जो लोग फूडी हैं यहाँ पर, उनके they must have salivation in their mouth, but again, don't worry about it. So this predictive analytics is a tool which is there to help you. ठीक है. Now हम इसको मेडिसिन में कैसे यूज करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ऐसे टूल्स हैं कि आपके पास मरीज आएगा, और अब हमारे पास ज़्यादातर अस्पतालों में एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होता है कि द पेशेंट्स डेटा इज एंटर्ड, कि नाम ये है, एज ये है, सेक्स ये है, फैमिली हिस्ट्री ये है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ये है. ऐसे ही हम लोग हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की. ये सारे डेटा सेट जब एंटर होते हैं, वो टूल खुद ही एनालाइज करके बता देता, ओ वेट अ मिनट, दिस पर्सन इज फ्रॉम बलिया एंड ही इज हिज BMI इज लाइक 40, एंड बलिया के लोग ज़्यादातर दे आर किसान, एंड दे ईट लिट्टी चोखा और बाटी चोखा, उसमें घी डाल के खाते हैं, इनका रिस्क फैक्टर ये होता है, और एंड दिस पर्सन इज एट अ हाई स्ट्रेस जॉब, ये DM साहब हैं या SP साहब हैं. तो उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके वो आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे देता है कि भाई देखिए, यू आर अ फिजिशियन, यू नो हाउ टू ट्रीट पेशेंट, बट स्टिल यू गॉट टू नो कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, डोंट मिस इट, सो दैट यू विल नॉट हर्ट अ पेशेंट. ठीक है ना. तो ये जो AI है, ये आपके हेल्प के लिए आया है. जैसे कि AI को आपको आज के बाद बच्चों, AI को आप ऐसा समझना कि आपके एक बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, जो कि आपको बैठे हैं आपको सिखाने के लिए.
वो आपको कभी रिप्लेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। अब आप सोचिए कि आपके जो सीनियर प्रोफेसर साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो आपको रिप्लेस करने आए हैं क्या? आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। आपकी सहायता के लिए ये टूल्स हैं जो कि टीचर बन के बैठे हुए हैं कि बेटा ये गलती ना करना। तो दैट्स ऑल एआई इज ऑल अबाउट। कई लोग ये भ्रांति बना बैठे हैं कि भैया अब तो ये कंप्यूटर आ गया, अब हमारा क्या काम है, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। ये गलत है। दिस इज अ सीनियर प्रोफेसर दैट वी हैव अपॉइंटेड इन द सिस्टम सो दैट वी डोंट डू मिस्टेक्स। ऑलराइट। इसमें क्या है कि अब कई चीजें होती हैं जो डेटा डेटा सेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग इन द ऑपरेटिंग रूम, आई एम ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम इमरजेंसी रूम कि एक पेशेंट आया हुआ है जो कि 49-year-old female with past medical history of diabetes mellitus type 2, hypertension, dyslipidemia, comes in with chest pain. And the pain started about 30 minutes ago. Patient was eating her breakfast and started having pain. और उसके साथ ही उनको पसीना निकलने लगा, उनको थोड़ा सर चकराने लगा। एंड अब जब आई हैं तो ईआर में घुसते ही उल्टी कर दी उन्होंने। तो वी नो ऑल दीज थिंग्स कि दिस इज हेडिंग टूवर्ड्स सम डायग्नोसिस जो पेशेंट बता रहा है, जो हमें पता चल रहा है। अब किसको वो क्या बता पाए? अब जो पेशेंट उल्टी कर रहा है वो आपको हिस्ट्री कैसे देगा? लेकिन जो भी डेटा सेट इंटर हो चुका है वो हमारे तक पहुंचे कोई ज़रूरी नहीं है। एआई मेक श्योर कि जो जो डेटा सेट एंट्री हो चुकी है उसको आप तक पहुंचाएगा और आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताएगा सो दैट यू कैन एक्ट फास्टर। वही होते हैं जैसे कि अगेन आई गो बैक टू द प्रोफेसर एनालॉजी कि आप जब कोई केस प्रेजेंट कर रहे होंगे तो प्रोफेसर साहब सुनेंगे आपको, बट द प्रोफेसर इज मेकिंग a differential diagnosis and they have a treatment plan already set. आप जब केस खत्म करेंगे तो आपसे पूछेंगे बताओ डिफरेंशियल क्या है, और उनके दिमाग में पहले से सेट है कि ये डिजीज क्या है, उनके पास ट्रीटमेंट प्लान है, सब कुछ है। इससे आप छोटे हैं ऐसा नहीं है, आप सीख रहे हैं और आप भी कभी प्रोफेसर बनेंगे, बट एआई इज दैट अपॉइंटेड प्रोफेसर। This AI knows everything because the data set professor has done so many years of practice, or that is how they are able to do things faster than you. And you will be at the same level of expertise one day after spending some time with the patient, spending some time with the academia. तो ये है हमारा एआई। इसमें हम लोग दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कि हम लोग देरी नहीं करना चाहते हैं पेशेंट टेक्नोलॉजी में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में। दूसरा कि कई सटल चीज़ें होती हैं, जैसे हम सीटी स्कैन देख रहे हैं, एक्सरे देख रहे हैं। अब कोई आया है एब्डोमिनल पेन लेके और अगर हमने सीटी स्कैन करवाया है तो वी आर लुकिंग फॉर पैथोलॉजी इन द एब्डोमेन। बट फोक्स, आपको ये पता है कि जब हम एब्डोमिनल सीटी करते हैं तो वो लोअर चेस्ट के भी कट कुछ करते हैं वो सीटी वाले, ताकि हमारा डायफ्राम के ऊपर का भी थोड़ा सा दिख जाए। अब मान लीजिए कि लोअर लोब ऑफ लंग में कोई नोड्यूल है, पेशेंट आया है एब्डोमिनल पेन से, वी आर फोकसिंग ऑन द एब्डोमेन, दिस टूल विल लुक एट दैट नोड्यूल ऑल्सो, और वो आपको बताएगा कि भाई देखो, माना पेशेंट एब्डोमिनल पेन से आया है लेकिन वो नोड्यूल भी है, जरा ध्यान देना, वो सिगरेट पीता है बंदा, या इसकी फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, या ही इज़ अ टीबी पेशेंट। तो वो नोड्यूल आप इग्नोर ना करना, वो भी है। हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम तो एब्डोमेन पर फोकस कर रहे हैं। दिस टूल, दिस सीनियर प्रोफेसर विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट मिस्टेक। ठीक है? ऑलराइट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया था, मैं और मेरे दो दोस्तों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। और ये प्रोग्राम ऐसा था कि लेट मी पुट इट एट एज अ कहानी, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगा। मानिए कि एक पेशेंट है, पेशेंट हैज़ से चेस्ट पेन, लेट्स स्टिक विद द चेस्ट पेन। एक 47 साल का बंदा है जिसको वो डायलिसिस पे है, उसका किडनी फेलियर हो चुका है, and the patient has chest pain. The patient has past medical history of diabetes mellitus type 2, dyslipidemia, gout, coronary artery disease, status post PTCA, मतलब कि सॉरी एंजियोप्लास्टी हुई है उसे, और यहाँ राइट आर्म में उसका एवी फिस्टुला लगा हुआ है, उसे चेस्ट पेन हुआ। और वो चेस्ट पेन हुआ तो सीधे ईआर में आ गया। ईआर में आने के बाद नर्स ने उसको पहले ट्रियाज किया। ट्रियाज करने के बाद नर्स ने बोला कि अच्छा चेस्ट पेन है, आपकी हिस्ट्री है, लेट मी कॉल अ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर। डॉक्टर साहब आए, उसको देखे, उन्होंने कहा कि हाँ यार ये हाई रिस्क पेशेंट है, इसको चेस्ट पेन हो रहा, मे बी कार्डियक, मे नॉट बी कार्डियक। उन्होंने ट्रोपोनिन ऑर्डर किया, CKMB ऑर्डर किया,
कुछ ब्लड प्रोफाइल ऑर्डर कर दिए, और जब तक वो रिजल्ट आ रहा था तब तक उन्होंने हमको फ़ोन कर दिया कि साहब ये बंदा आया हुआ, हाई रिस्क है, चेस्ट पेन है, आई एम सस्पेक्टिंग इट मे बी हार्ट रिलेटेड, और मैं ईकेजी कर रहा हूँ, आप ज़रा प्लीज़ आके देख लीजिए। तो ईकेजी जब तक आती है, हमने देखा उसको ईकेजी इज़ नॉर्मल बट द पेशेंट हैज़ अ हाई रिस्क। और बच्चों, ये हम क्लास बाद में ले लेंगे कि आखिर हम कैसे स्ट्रेटिफाई करते हैं। नॉर्मल ईकेजी हाई रिस्क पेशेंट विथ नॉर्मल troponin चेस्ट पेन इज नॉन एसटी एलिवेशन एमआई अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये हम लोग बाद में ये कार्डियोलॉजी की क्लास बाद में होगी, अभी एआई की पे हम लोग ध्यान देते हैं। नर्स ने देखा, ईआर फिजिशियन ने देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, और हमने एक डिसीजन बनाया, हाँ यार ये हाई रिस्क पेशेंट है, इनको एडमिट करते हैं, एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल कैथ द पेशेंट, हम लोग एंजियोग्राम करेंगे। पेशेंट इज नाउ ट्रांसफर टू द फ्लोर, मेड टेली फ्लोर या आईसीयू में चला गया। पेशेंट जाता है, वहां पे नर्स ने रिसीव किया, एंड ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंस, पेशेंट क्रैशेस, पेशेंट हैज कार्डियक अरेस्ट एंड कोड ब्लू इज कॉल्ड। सभी लोग पहुंचे, सीपीआर शुरू हो गया, एंड somehow we revived the patient, but the patient is now unconscious, we had to intubate, and patient is now on ventilator. अब यहाँ पे कहानी खत्म करते हैं, लेट्स रिविजिट दिस कहानी अगेन। पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ था, उसने सही डिसीजन बनाया, भैया हमें परेशानी है, हम चलते हैं ईआर। ईआर आ गया, ईआर में उसको सही नर्स ने देखा और उसने सही डिसीजन बनाया कि भैया तुम्हें चेस्ट पेन लगता है, हार्ट का है, हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं। ईआर फिजिशियन आ गया, ईआर फिजिशियन ने भी सही डिसीजन बनाया, उसने कार्डियोलॉजिस्ट को बुला दिया और सारे टेस्ट भी ऑर्डर कर दिए। कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, उसने भी सही डिसीजन बनाया कि पेशेंट को एडमिट कर देना है, इसको फॉलोअप करते हैं और उसका हम एंजियोग्राम करेंगे कल सुबह। सारी चीजें सही हुई, पेशेंट ने भी सही किया, मैनेजमेंट भी सही हुआ, एडमिशन भी सही हुआ। माय क्वेश्चन इज देन व्हाई डिड पेशेंट क्रैश्ड? कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों फिर, जब सब कुछ सही चल रहा था? ये मेरी परेशानी थी और मेरे दोस्तों की। तो हम 3 लोग बैठ के हम लोगों ने कहा, यार वेयर डिड वी गो रॉन्ग? तो हमने ये पाया कि जो डेटा है वो सब हर जगह एंटर किया गया था सिस्टम में, लेकिन इट वॉज नॉट रिसीव्ड एट द राइट टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब पेशेंट आया था ईआर में, उसको चेस्ट पेन था, वो बहुत एंशियस था, उसका ब्लड प्रेशर था 170/110। लोगों ने नाइट्रोग्लिसरिन दिया सबलिंगुअल, उसका पेन कम हुआ। ब्लड प्रेशर वाज 120/80 व्हेन द पेशेंट रीच्ड द फ्लोर। लेकिन वो जो नर्स थी 120/80 देख के बोली कि हाँ ये नॉर्मल है, इट्स ओके। ईआर की नर्स ने बोला हाँ ये नॉर्मल है, इसको पेन है, इज एंशियस, दैट्स व्हाई द ब्लड प्रेशर इज अप। नाउ इफ यू वर टू सी दिस डेटा, blood pressure dropping from 170 systolic to 120 systolic in half an hour, it should raise a flag। क्या हुआ, क्या क्यों ड्रॉप हुआ है? अच्छा, उसके बाद 110 हो गया, फिर 100 हो गया, एंड वी से हाँ हाँ अब काम है, क्वाइट है, ही इज स्लीपिंग, इट्स नॉर्मल। नो इट इज नॉट। 170 से 100 होना हाफ एन आवर में, 45 मिनट्स में, इट्स नॉट नॉर्मल। एंड द रीजन वाई वी पुट दिस एज अ मॉडल, मैंने कहा कि नहीं, जो जो देख रहा है वो एक स्निपेट देख रहा है, एक फोटो देख रहा है। जैसे कि हम लोग किसी टूर पे जाते हैं ना, एक फोटो खींच लेते हैं, एक में हंस रहे होते हैं, एक में लोगों के साथ होते हैं, और वो फोटो दिखाइए, सब बोलेंगे हाँ अच्छी ट्रिप थी, बहुत बढ़िया ट्रिप थी। लेकिन अगर उसी की एक मूवी बना के दिखाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले हम स्टेशन पे उतरे थे, फिर हम होटल में गए, फिर चेक इन किया, फिर खाना खाया। दैट मूवी गिव्स यू अ बेटर आइडिया देन जस्ट a photo in the restaurant, a photo at the airport, and things like that. And I hope I'm clear. Guys, are you following me, what I'm saying? Raise your hand if you follow me. Perfect, perfect. I got it, got it. Yeah, please stop me. Please stop me if you're not getting it. ठीक है ना? तो हमने क्या किया कि हमने ये सारे डेटा सेट्स को, एक मेटा डेटा सेट होता है, वो एक ऐसा कह लीजिए कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हम मेटा डेटा लगा देते हैं वहाँ पे। तो हमने 2 स्कोर्स बना दिए। एक पेशेंट के कोमॉर्बिडिटी का स्कोर था। कोमॉर्बिडिटी स्कोर ये होता है कि मान लीजिए एक 20 साल की लड़की आती है चेस्ट पेन लेके, जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स 1 चेस्ट पेन। और एक 70 साल की महिला आती हैं जिनको चेस्ट पेन है और वो डायलिसिस पे हैं या उन्हें स्ट्रोक हो चुका है, उन्हें डायबिटीज है, वो 1 चेस्ट पेन है। बोथ आर चेस्ट पेन्स बट दे आर डिफरेंट। सो वी सेड ओके, कोमॉर्बिडिटी स्कोर डाल दो इसमें, क्योंकि अगर कोमॉर्बिडिटी है, द चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट
एज अ कॉज ऑफ चेस्ट पेन इज हायर, तो उसको हमने कोलैबोरेट कर दिया। दूसरा था कोलैबोरेशन की पेशेंट रिलेटेड स्कोर, कि भाई अगर पेशेंट अभी दे आर कंप्लाइंट विथ मेडिकेशन और नॉन कंप्लाइंट विथ मेडिकेशन, दे आर डूइंग थिंग्स राइट और नॉट डूइंग थिंग्स राइट। अब जैसे देखिए कोई बहुत ही ओबीस पेशेंट है एंड दे डोंट केयर अबाउट एक्सरसाइज, दैट्स वन। The second patient is an obese patient and they are working hard to lose weight. They are also doing physical exercise. So one is compliance and one is non-compliance. And the last score we input was the lab. Chest pain with positive troponin is one. Chest pain with negative troponin is another one. Negative troponin मतलब troponin is normal. और बच्चों जिनको नहीं पता troponin, troponin is a heart enzyme which is elevated during the heart attack. Patient with पॉजिटिव ईकेजी चेंजेस, और सॉरी ईसीजी, हमारे यहाँ अमेरिका में ईकेजी कहते हैं इसको, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंजेस इज वन एंड पेशेंट विथ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अनदर, एंड बोथ कैन बी द सेम एज सेम प्रेजेंटेशन। तो इन सारी चीजों को हमने इस डेटा सेट में डाला एंड फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमने ये बताया कि मान लीजिए कि अगर स्कोर 60 से ज्यादा है, and again I'm just saying for the sake of discussion and our understanding, अगर ये स्कोर 60 से ज्यादा है तो दिस टूल प्रिडिक्टेड कि अगले 24 घंटों में ये पेशेंट क्रैश होने वाला है, ये पेशेंट या तो आईसीयू जा रहा है, और पूजा, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल? Sir, और हाउ मेनी फ्लोर्स आर इन योर हॉस्पिटल, लाइक कितनी मंजिल हैं आपके four, अस्पताल में? four, sir, four. तो या तो ये बंदा या बंदी आईसीयू जा रहा है अगले 24 घंटों में, और या तो 6th फ्लोर पे जा रहा है अगले 24 घंटों में। आई मीन टू से दैट दे आर लीविंग अस, राइट? सो अब जरा सोचो बच्चों, एक डॉक्टर को, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर को बता दिया जाए कि भाई देखो तुम्हारा ये मरीज 24 घंटे में मरने वाला है, डू वॉट एवर यू कैन। कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए कि हम लोग अपनी जिंदगी लगा देंगे 24 घंटे में इस पेशेंट को ना मरने के लिए। अब जैसे बच्चों जिनको राजा परीक्षित की अगर कहानी पता हो कि उन्हें बता दिया गया था कि भैया आप इस तारीख को मरने वाले हैं, और उन्होंने क्या क्या जुगत लगाई थी, जिनको नहीं पता है बच्चों पढ़ो इसको। ये एएम जो है ना वो वही भविष्यवाणी है कि आपको बता देगा, एंड दैट इज वाई वी कॉल्ड, पहले मैंने इसका नाम रखा था ईडिप, EDIP, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन पेशेंट फिजियोलॉजी। वो उतना फैंसी नहीं था, और उसी समय ये 2000 मेरे ख्याल से 13, 14 या 15 के आसपास की बात रही होगी। उस समय ना ये केजरीवाल की पार्टी आई हुई थी, आम आदमी पार्टी। तो मैंने कहा यार ये एएम हम भी आम ही रखते हैं इसको, तो पॉपुलर होगा, वो भी पॉपुलर हो गया तो उसी बहाने हम भी पॉपुलर हो गए। तो एडवांस अलर्ट मॉनिटरिंग हमने नाम रख दिया था इसका, एंड वी पब्लिश्ड दिस डेटा इन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, नेजम, अगर आप लोग पढ़ते होंगे नेजम आर्टिकल्स। 2 years ago we published this data and we got the best innovation in healthcare award in Geneva last year. So this is the strength of predictive analytics and augmented intelligence. अब बच्चों मैं बताऊं कि इससे हमें मिला क्या। जब मैंने पहले साल इस मॉडल को रोल किया था अपने सिस्टम में, मैं एक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काम करता हूं, उसका नाम है काइजर परमानेंटे। वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास करीब करीब 55,000 फिजिशियंस हैं, एंड आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, जो कि पार्टनर्स होते हैं, और वी ओन द सिस्टम। 55,000 में से 2,000 लोग ऐसे होते हैं जो ओन करते हैं, वी हैव द शेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और भगवान की कृपा से मेरे पास भी है। हमने अपने पहले अस्पताल में जब ये किया था लागू, तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। तो हमारे पास 27 अस्पताल हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। 27 अस्पतालों में जब 1 साल के लिए हमने इसको प्रैक्टिस किया था, तो वी वर एबल टू सेव 169 लाइव्स। 169 जिंदगियां बची थी 1 साल में। तुम सोचो, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है 27, आई मीन इतने अस्पतालों में केवल इतने नंबर नहीं, 170 जिंदगियां। आप जरा सोचिए कि उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या बीती होगी अगर वो नहीं रहते, उनके घर वालों पे क्या बीतती, उन पे क्या बीतती। 170 जिंदगियां जब बची,
we said, you know what, this is something which is working, and what we did was we released it to ecosystem. We gave it to everybody. मैंने publish किया, मैंने कहा यार सब सीखो, सब बचाओ. This is something which is working. So this is the strength of augmented intelligence and predictive analytics using in your clinical practice. तो बच्चों ये एक ऐसे प्रोफेसर साहब थे जिसको हमने हायर किया था, जो कि आके हमारी गलतियां हमें बताते थे कि भैया ये ना करो. कई बार क्या होता है बच्चों की, जब होता है ना आपसे गलतियां होती चली जाती हैं, फिर आपके प्रोफेसर आते हैं, कहते हैं कि हमारे पुरानी मूवीज में एक डायलॉग हुआ करता था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा. तो ये वाले प्रोफेसर जो है ना, वो ये नहीं कहते हैं कभी कि तुमसे ना हो पाएगा, वो ये कहते हैं कि ये करोगे तो सही हो जाओगे. तो ऐसे मान के चलो इनको, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. इसके बारे में बच्चों मैं आपको आपके फैकल्टीज को मैं अपना पेपर भेज दूंगा, और आप लोग इस पेपर को पढ़िएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कनेक्ट विथ मी. ठीक है ना? नाउ हम ये सब करके पा क्या रहे हैं? तो पाना ये है बच्चों कि जितनी भी गलतियां हमसे हो सकती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, सीटी स्कैन हुआ था एक एब्डोमिनल पेन का, उसके लंग्स के भी लोअर कट्स थे, उसमें एक नोड्यूल्स था जो कि हम मिस कर सकते थे, और वो हम वी आर एबल टू काइंड ऑफ figure it out because the augmented intelligence is kind of picking it up and telling you, hey, by the way, I know this person has abdominal pain, but don't miss. दूसरी चीज कि अगर किसी को मान लीजिए कि कोई बहुत ही भयानक बीमारी लेके आया हो, जैसे आजकल देखो बच्चों की, आज से 50 साल पहले अगर आप 10 घरों में जाते और इंटरव्यू करते लोगों को, तो 10 घरों में शायद आपको कोई एक मिलता जो कि कोई दवा लेता था. और बच्चों आज अगर आप 10 घरों में जाओगे और इंटरव्यू करोगे लोगों को, तो 10 घरों में शायद कोई एक मिलेगा जो दवा ना लेता. एंड दिस इज वेयर वी हैव कम. और इसको हम कहते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं भैया. इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो नहीं सकता. So when we are dealing with these kind of patients who are taking medicines after medicines after medicine, we get confused. We are humans ना. तो अगर डिजीज बर्डन पहले होता था कि एक दो डिजीज होती, हाइपरटेंशन होता था, डायबिटीज होती थी. अब क्या है कि एक पेशेंट आता है 14 15 16 20 डायग्नोसिस लेके. एंड बीइंग अ ह्यूमन वी कैन गेट कंफ्यूज्ड. दिस टूल does not allow us to get confused. It will keep things very simple, very focused. It's just like your professor, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो आपके टीचर हैं या आपके रीडर्स हैं जो भी हैं. आई एम कॉलिंग प्रोफेसर एज अ टीचर. ये वो टीचर्स हैं, वो उनको आइडिया है, आप उनको कितना भी बर्डन दे दो, कितना भी डिजीज बर्डन दे दो, दे नो हाउ टू फोकस. दिस टूल विल एक्ट एज योर टीचर, कि आपको समझाएगा कि नहीं बेटे कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज व्हाट इट इज. तीसरी चीज है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर मान ली सीओपीडी का पेशेंट आ गया जो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लेके आया है. नाउ सीओपीडी इज अ डायग्नोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अ प्रेजेंटेशन, इज अ सिम्टम. अब हर एक सीओपीडियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो लेके आएगा सेम नहीं होता. कई का होता है कि भैया उन्होंने 100 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री है, कई का है 2 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री. बोथ हैव द सेम डायग्नोसिस, सेम सिम्टम. So this tool will tell you how to kind of collaborate that. यार दोनों सेम नहीं है, we must treat them differently. And the last thing is कि जैसे मैंने वो abdominal pain CT scan of the abdomen and lung nodule का आपको एग्जांपल दिया था, it will facilitate, आपको रिमाइंड करेगा, hey by the way वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, that patient had a colitis, we treated with metronidazole and say ceftriaxone, these are some एंटीबायोटिक, और वो तो ठीक हो गया है, लेकिन बाय द वे तुमने लंग नोड्यूल अभी तक एड्रेस नहीं किया है. डोंट फॉरगेट अबाउट इट. इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, बिकॉज इफ यू मिस दैट एंड गॉड फॉरबिड if it turns out to be a non-small cell lung cancer or small cell lung cancer because of smoking, or squamous cell lung cancer, that patient can die, which would have been fixed, just because you caught it on time. तो ये आपको कहेगा कि नहीं, मिस नहीं करने देगा. टिपिकल प्रोफेसर आपको ना वो परेशान करते रहेंगे जब तक आप उनका काम नहीं करोगे. नाउ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपको बता दी कि एआई और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या क्या अच्छा करते हैं. इनमें कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ हैं जो कि ह्यूमनली हम कर पाते हैं, मशीन उतना समझदार अभी तक नहीं हुई है.
परहैप्स इट विल बिकम समझदार डाउन द रोड। पहली चीज ये है कि अब ये डेटा सेट में चला गया है, तो एवरीथिंग इज ओपन। एक किताब बन गई है, किताब सबकी खुल गई, सबके सामने है जी, जिसको जो पन्ना पलट के पढ़ना है पढ़ लो। उसमें कोई भी इंटीग्रिटी अब बची नहीं। यू हैव टू हैव एन एक्सेस एंड यू कैन रीड इट। तो उसमें ये होता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें हैं हमारे समाज की जो कि हम नहीं बताना चाहते हैं या नहीं उजागर करना चाहते हैं दूसरों की तरफ। दैट थिंग इज नॉट अवेलेबल हियर, इट्स ओपन, एंड दैट कैन अफेक्ट सम ऑफ आवर community which they don't want to let others know. The second thing is, हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है या फिर जो भी व्यवस्था है हमारी, उसमें हर एक अहोदे के नागरिक को हर एक चीज उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारे बलिया में, मैं जिस गांव से हूँ, आज भी वहाँ बिजली नहीं, और हम सोलर से अपनी बिजली चलाते हैं। अब हमारे यहाँ के बच्चे को आके आप आज से 10 साल पहले डायनेमो पढ़ाओ, तो भैया वो बिजली देखा ही नहीं है। तो बिजली नहीं देखा है तो पंखा नहीं देखा है, पंखा नहीं देखा है तो डायनेमो उसको पता नहीं है। तो आप पढ़ा लीजिए, आपको जो पढ़ाना है पढ़ा लीजिए, उसको कुछ समझ नहीं आना है। उसी तरीके से यूएस में we basically have African Americans, which are we call them black, Caucasians, we call them white, and there are some browns, which are me, Asians. तो हर तीन जो हैं, इनकी व्यवस्था अलग है, इनके एक्सेसिबिलिटीज अलग हैं। ये हम जब भी ब्लैक्स को देखते हैं तो उनको वीरता देते हैं कि भैया तुम अंडर सर्व्ड हो, तुम आओ, पहले तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा अगर हम नहीं करेंगे तो। बट ये एआई ना, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, इसके लिए सब बराबर है। चेस्ट पेन इज चेस्ट पेन, abdominal pain is abdominal pain. It doesn't matter, you are insured, you are uninsured, you are black, white, brown, yellow, whatever. It does not differentiate, it does not discern between them. Now अगर कोई आ भी जाता है तो फिजिशियंस कैसे एक्सेसिबल होते हैं, कितनी जल्दी जाना है, ये नहीं करता है। जो भी आया है बेस्ड ऑन सिम्टम्स, इट विल अलर्ट द check mark and it will guide you towards that. इसमें वो आई डोंट नो उसका हिंदी शब्द क्या है, वो मानवता उतनी नहीं है, मशीन है ना, तो सबको बराबर देखता है। एंड जो भी डिसीजन आपने बनाया है, एवरीथिंग विल गेट डॉक्यूमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक पेशेंट आता है हेडेक लेके, और 3 डॉक्टर्स हैं पेशेंट को देखने वाले। एक डॉक्टर हेडेक के लिए एस्पिरिन देता है, दूसरा डॉक्टर उसको आइबुप्रोफेन देता है, और तीसरा डॉक्टर उसको पैरासीटामोल देता है। नाउ वी नीड टू नो कि डॉक्टर ए ने आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल क्यों नहीं चूज किया, या डॉक्टर बी ने एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्यों नहीं चूज किया। और ये सारी चीजें हम लिखते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड होती चली जाती हैं। आपको मैं एक काम दूंगा, आप कभी भी किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे ना, नॉट इन मेडिकल स्कूल, नॉट इन एकेडेमिया, दे हैव ऑल रीजनिंग, लेकिन गांव में जब जाएंगे ना आप, जैसे वो आयुष फिजिशियंस होते हैं, उनसे पूछेगा भैया आप क्यों ये दे रहे हैं, तो आपको ज्यादातर आंसर ये मिलेगा कि भैया देखो हम पिछले फलान इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये काम आता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट, सो डोंट आस्क मी, दिस वर्क्स, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग, और दे विल से आई फील लाइक गिविंग इट। यहां पर वो नहीं कर सकते, यहां पर हर एक चीज डॉक्यूमेंट होता है एंड यू आर आंसरेबल। सो वंस यू डू थिंग्स, यू आर आंसरेबल टू द सिस्टम, टू योर प्रोफेसर्स, टू योर पेशेंट्स, व्हाट यू हैव डन। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्लॉज हैं। कई बार होता है ना, हम लोग जल्दबाजी में कर जाते हैं, बट यहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। आपके लिए क्या है एआई और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में? एक तो चीज ये है, जैसे मैंने बताया कि जब मैं ट्रेन हुआ था तो हम लोग वीजिंग, रोंकाई, स्टेथोस्कोप से देखते थे, आज भी वो देखते हैं। बाय द वे, दैट अल्ट्रासाउंड कैन नॉट डू एनीथिंग, वो आपको स्टेथ लगाना ही पड़ेगा उसके लिए। बट वी ऑल्सो यूज टू डू मर्मर्स, राइट? लाइक we have pan-systolic murmur, ejection systolic murmur, mid-diastolic murmur, opening snap, S1, S2, all these fancy names हम लोग पहले करते थे। अब क्या है कि हम लोग स्टेथोस्कोप की जगह एक प्रोब लगाते हैं, और वो प्रोब जो है हमें दिखा देता है किस वॉल्व में लीक है, किस वॉल्व में स्टेनोसिस है,
हम अगर मान लो कि सेकेंड एयोर्टिक एरिया में देख रहे हैं, अगर कोई मरमर आया तो पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हो सकता है, वो पल्मोनरी इंसफिशिएंसी भी हो सकता है, वो एयोर्टिक इंसफिशिएंसी भी हो सकता है, वो एयोर्टिक स्टेनोसिस भी हो सकता है. इट कैन बी पीडीए रेफरिंग टू दिस एरिया, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन जब आप प्रोब लगाते हो, यू कैन सी द वैल्व, यू कैन सी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग, आपको गेस नहीं करना पड़ेगा. So that is something which you have to learn, because down the road, whether you like it or not, medicine is heading in that direction कि चीज़ों को आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर होगा. तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है, knowing this that we are heading in that direction, you should start preparing yourself. Second thing is, how do you use this for your advantage? And when I say your advantage, I must tell you, बच्चों अपने अपने रूम में, जो भी हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल में, और जो घर पे रहते हैं वो अपने घर पे जाके अपने बेड के पास या अपने स्टडी टेबल के पास एक स्टिकर आज जरूर, हाथ से जो लिख सकते हैं हाथ से, और जो प्रिंट कर सकते हो प्रिंट करके जरूर लिख देना, पेशेंट्स फर्स्ट. बिकॉज आवर लाइफ इज नथिंग if we don't treat our patients well. We are here because our patients need help. तो पेशेंट्स फर्स्ट. तो ये जो डील है ना, ये जो इंटेलिजेंस है, वो आपको हमेशा याद दिलाएगा. आई डोंट केयर इफ यू आर टायर्ड, I don't care if you are not happy, and I don't definitely care if you have headache or whatever. Your patient is waiting for you, and this is what the differential diagnosis is. Get up, go treat the patient. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. मैं रेजिडेंसी जब कर रहा था तो मेरी एक नर्स हुआ करती थी, फ्रैनी. उसका नाम फ्रैन था, हम लोग उसको फ्रैनी कहते थे. वो माँ की तरह थी हम लोगों के लिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड. और एक दिन मैं 96 आवर्स लॉन्ग कॉल करके, 4 दिन की हमारी कॉल होती थी, मतलब 4 दिन आप सोते नहीं हैं. You are seeing patients back and back to back, back to back. You're operating, you're going to see patients, and you're doing all those things. I was so tired that I went to Franny and I put my head on her shoulders. I put my head down and I said, Franny, I'm tired. And Franny, on the other side, she put her hand out and put on my cheeks. And she just tapped on my cheeks. It's okay, honey. Get back to work. And that is what this augmented intelligence and predictive analytics is all about. It will remind you that you are the treating physician, but the most important person today is my patient. Please don't waste time. Get your knowledge, your hand, your body there, because they need your help. So that is one thing you must understand. This system is not here to tease you, to scare you, but it is here to remind you. आप इसको बस अपना एक सीनियर प्रोफेसर मान लीजिए कि जब तक टीचर क्लास में है, जो उच्छृंखल बच्चे होते हैं, जो उदंड बच्चे होते हैं ना, जो चाक वाक फेंकते रहते हैं, पेपर मारते हैं, जैसे टीचर आता है एकदम नॉर्मल मेरी तरह से बैठ जाते हैं. तो ये वही प्रोफेसर साहब हैं, वो आपको हमेशा रिमाइंड कराएंगे. और इससे एक चीज होगी कि हर एक जगह बराबर लेवल का केयर पहुंचेगा. ठीक है ना, कि शहर में जो मिल रहा है वही गांवों में भी मिलेगा, क्योंकि ये टूल आपके पास हर जगह उपलब्ध होगा. ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव गॉन थ्रू, यही हमारा कंक्लूजन है कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज कमिंग टू रिप्लेस अस. इट इज कमिंग टू हेल्प अस, एंड इज देयर टू हेल्प अस. लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि आपके प्रोफेसर साहब जो हैं, आपके जो टीचर्स हैं, दे आर नॉट हियर टू रिप्लेस यू, दे आर हियर टू हेल्प यू टू लर्न बेटर, टू डू बेटर जॉब, to do better work, to serve the patients better, not to replace you. So don't get scared. ठीक है. ये जो AI और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, वो एक कोलैबोरेशन है, एक ब्रिज है आपके और आपके पेशेंट केयर के बीच में. ये कोई डरावना दानव नहीं है कि आपको डराने आया है. ये बस आपकी हेल्प करने आया है. भैया एक एक ब्रेक है इन बीच में, और उस पर ब्रिज डाल के आपको वॉक थ्रू कराने आया है. And as long as you are part of this analytics, you're part of this system, this technology, you will learn every day. Like I did. You know, I was trained with the stethoscope and percussion and all those things. And आपके प्रोफेसर आज भी सिखाएंगे, उसको सीखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गाँवों में जब आप जाएंगे, जो अंडर सर्व्ड एरिया है, वहाँ पे ये सब होगा. You still need to learn all those things that I have learned, but you must also put this in consideration, that this is coming. This is unavoidable. It's coming your way.
दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। जरा सोचिए कि ये आपकी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, क्योंकि मैं आपको अभी जितनी भी बातें बता पाया हूं वो इसलिए बताया हूं कि मुझे पता है, मैंने किया है। इट डज नॉट मैटर दैट आई एम द बेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड फॉर AI एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आई एम जस्ट वन ऑफ देम, ऑलराइट? You, on the other hand, because you are still learning, you will come up with a better solution, better answers for the question. तो इसलिए बच्चों, हमेशा कीप योर माइंड ओपन एंड डोंट कीप इट सो वाइल्ड। आई मीन, इतना भी मत खोल देना अपने दिमाग को कि ब्रेन ही बाहर गिर पड़े। लेकिन थोड़ा सा खोल के रखिए अपने दिमाग को, ताकि आप सीख सकें नई चीज़ें। और दूसरी ये है कि मुझे नहीं पता, यूएस में देखिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इट्स वेल डिजाइंड, और लगभग हर जगह हर चीज़ें उपलब्ध हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वी हैव टीयर सिटी, tier 1, tier 2, tier 3 cities. Not every city is same. So I don't know how we are going to implement this. But one thing I must request you all, आप सबसे आग्रह है कि इसको बच्चों सीखो। बहुत आसान है, इसके टूल्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और सीखोगे तभी आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। अभी राव सर और मैं एक बैठक में थे, जहाँ पर कि एक हमारे बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अपना चीज़ें प्रेजेंट किया था। ही इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट, ही ओन्स अ कंपनी, जोहो। इनका नाम श्रीधर वेम्बू है, पद्मश्री हैं। एंड ही इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली हेल्प मी डेवलप ऑल दीज थिंग्स। हम लोग बहुत 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 घंटे बैठ के बात करते थे। ही इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट, आई एम अ फिजिशियन, देयर इज नो, वी आर नॉट मैरिड। हम लोग अगर हो एक रिलेशनशिप हमारे बीच में है तो मैरिज के पहले डिवोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड फिजिशियंस आर टोटली डिफरेंट। बट दिस इज हाउ इट वाज डेवलप्ड। ठीक है? नाउ एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? आई एम डन, आई थिंक आई एम डन, या दिस वाज लास्ट स्लाइड, एंड सॉरी आई टुक योर सो मच टाइम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। माय नेम माय नेम वहाब अली सिद्दीकी, MBBS फर्स्ट ईयर बैच। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि AI का यूज तो हम हर जगह कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में भी इसको यूज हो रहा है, लेकिन इसका प्राइवेसी क्या है? अभी हमने 2-3 महीना पहले जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देख चुके हैं पेजर अटैक के बारे में। हो सके कल को हम बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना से मंगाते हैं, तो उसमें भी AI का दुरुपयोग करके वो हम पे अटैक कर सकता है। यही मेरा क्वेश्चन। तो डॉक्टर सिद्दीकी, पहली बात तो ये जानिए कि जो भी हम कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, एंड दैट इज वाई इन यूएस वी हैव समथिंग कॉल्ड हिप्पा। हिप्पा के बारे में आप पढ़िएगा। एक हिप्पा हमारा एक लॉ है, उसमें हेल्थ केयर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, और वो ट्रांसपोर्टेबल है। अब आप जैसे देखिए कि कोई हमें भूसा या कोई गन्ना एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, ठीक है ना, तो हम ट्रक पे लाद देते हैं और ट्रक लेके जाता है। अब जितने स्पीड में ट्रक जाएगा उतना ही भूसा उड़ता रहता है, तो हर जगह व्यस्त सबको मिलता रहता है। ठीक है ना? लेकिन आप जरा सोचिए कि जो आर्मी की ट्रकें हैं जिनमें एम्यूनेशंस जाता है, जिसमें प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, या फिर आपके यहाँ जो ATM मशीनें हैं उसमें जो वो जो छोटी सी ट्रक आती है जो पैसे लोड करने आती है, वो कितनी प्रोटेक्टेड होती है? वो भी उसी रोड से जाती है, उसी स्पीड में जाती है। बट द प्राइवेसी इज डिफरेंट फॉर बोथ द सिस्टम्स। So we must come up with a solution. We must learn from the countries who have been doing it for many years, like United States, and I'm there. देखिए, मैं अमेरिकी नागरिक हूं लेकिन हूं भारतीय। तो आई विल बी देयर टू हेल्प डेवलप ऑल दीज थिंग्स। तो डॉक्टर सिद्दीकी, योर क्वेश्चन इज वेरी मच वैलिड। वी मस्ट प्रोटेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू चाइनीज इक्विपमेंट्स, आई मस्ट टेल यू, ये कल ही मैं जाके ये iPhone 16 एक खरीद के आया हूँ। मैं यहाँ से इसलिए खरीदा क्योंकि यूएस में जो 16 मिलता है उसमें सिम कार्ड के लिए स्लॉट नहीं है, यहाँ वाले में सिम कार्ड के लिए स्लॉट है। सो आई बॉट वन एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी टू सी इट शोड, क्योंकि मैं यूएस में कुपर्टिनो में रहता हूँ जहाँ एप्पल का हेडक्वार्टर्स है। इट वॉज रिटन डिजाइंड इन USA एंड मेड इन इंडिया, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। So we are heading in the right direction.
And with our leadership, with Prime Minister Modi and Chief Minister Yogi and your teachers, sky's the limit. We are heading in the right direction. We will get there, and we will learn from the countries like United States of America or many countries in Europe. And believe it or not, Dr. Siddiqui, I promise you there'll be a day that India will lead them and they will learn from us because we are resilient as an Indian. So thanks for raising this question. This is a beautiful question. Any other question? यार मेरी अंग्रेजी आप लोग समझ में आ जा रही है ना? ऐसा तो नहीं कि आधी वो बाउंसर, वो श्रीकांत टाइप की या गावस्कर टाइप की बाउंसर खेल रहे हैं आप लोग? जिनके हाथ में माइक है आप हाँ या ना बताइए। आपको अंग्रेजी समझ में आ गई? यस सर। धन्यवाद। अब बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। Good morning, sir. Myself, Ayush Sharma. I'm from MBBS first year batch. Sir, my question is these AI techniques and methods that are being developed and will be developed, how can we make them easily accessible and available on a large scale in the community? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर शर्मा अगेन। देखिए, इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे आप दिख रहे हैं। मेरे आप में बहुत फर्क नहीं है। हाँ, यही है कि मैं आपसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हूँ, वो थोड़ा 2-4 साल का फर्क होगा, ज़्यादा नहीं है। जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता है और हमें अपनी डिफिकल्टी पता है। पेशेंट्स को क्या नहीं मिल रहा है और डॉक्टर क्या दे सकता है, ये दोनों चीज़ें हमें पता है। और इस डिफरेंस को ब्रिज करेगा वो टेक्नोलॉजी, इसलिए हम वो डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर शर्मा, जब भी हम डेवलप करें, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे उसको डेवलप करें जहां पर कि मैक्सिमम आप उसको शेयर कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई शोड यू दिस फोन, राइट? This is Apple and this is iOS. Not everybody has it. Or Android is widely available. So when an app is developed, it should be developed on both the platform. जिसको iOS वाले भी यूज कर सकें, Android वाले भी यूज कर सकें। तो that is one way that it will be developed and accessible to all. That's one part of it. Second is it should be developed in all the languages. जैसे कि हमारे भारतीय कई लोग हैं जो अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हिंदी मीडियम, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बाय द वे, लखनऊ में। मुझे हिंदी छोड़ के कुछ आता ही नहीं था। और जब मैं 10th तक यूपी बोर्ड में था तो मुझे जल शीतोष्ण अलवायु और वो कटिबंध प्रदेश ये सब पता था। और जब मैं 11th में पहुंचा दिल्ली पढ़ने सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और ये, मैं कहा यार ये क्या बोल रहे हो आप लोग, मुझे कुछ पता नहीं है। So, I learned English, and I was fortunate enough that I had right guru to teach me right way at the right time. But many of our हमारे जो नागरिक हैं जो गांव में रहते हैं, उनको ये एक्सेसिबल नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि एक तो सही प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया जाए, दूसरा हर भाषा में डेवलप किया जाए, बिकॉज भाषा शुड नॉट बी द बैरियर टू कम्युनिकेट। तो डॉक्टर शर्मा, आई वुड सजेस्ट कि those who are people like you, good people, that you have this question. When you assist anything which is developed, you must keep in mind कि हम डेवलप किसके लिए कर रहे हैं, ये इसके एंड यूजर कौन होंगे, और उनके लिए डेवलप करना है बेटा। और आई एम श्योर दैट लीडर्स लाइक यू विल मेक श्योर दैट इट इज एक्सेसिबल टू ऑल एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल। Did I answer your question? Yes, sir. You answered it very well. Thank you, sir. Welcome. Good morning, sir. My name is Dajat Gupta from BMS. Sir, actually, I have two questions. My first question is, as AI lacks creativity, and सर जैसे हम लोग में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, सोच सकते हैं, आइडिया डिफरेंट ला सकते हैं, और सर जैसे AI itself is our idea, ह्यूमन्स आइडिया इट इज। सो सर अगर AI में जो जितने भी डाटा हैं वो सर फिक्स है, उसके बियॉन्ड AI नहीं सोच सकता, जैसे ह्यूमन सोच सकते हैं। और सर जैसे आपने एक केस बताया कि अगर कोई एक पेशेंट है, उसकी बॉडी हाफ पैरालाइज हो गई है, तो AI हमको ये तो बता सकता है कि इसके पास इतना टाइम है, इतना समय है, हमको कुछ करना है, पर हमको क्या करना है, क्या उसकी जान कैसे बचा सकते हैं, ये तो हमें डिसाइड करना होगा। तो सर और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था सर कि
एआई में सर इम्पैथी की लैक से, जैसे ह्यूमन वी आर, हम लोग सोच सकते हैं किसी की फीलिंग्स, किसी का पेन, तो सर जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं साइकेट्रिक के पास, तो उसमें सर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे एआई सर कैसे कर सकता है काम? आई एम सॉरी, आपका नाम आई मिस्ड इट। सर रजत गुप्ता। गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता, ऐसा है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दैट यू गॉट अप, और आप बीएमएस में हैं। बीएमएस इज समथिंग विच आई रिस्पेक्ट अ लॉट। आयुर्वेदा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ के लिए मेरे बहुत ही रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई बिलीव इन होलिस्टिक मेडिसिन। ठीक है ना? और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, और जगह नहीं हो सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीएमएस। डॉक्टर गुप्ता, आपके दो क्वेश्चंस को मैं पहले, जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले आंसर करता हूँ। जो इम्पैथी की बात आपने की है, महाराज जी से जब हम मिले थे, तो उन्होंने एक ऐसी ही बात बताई थी, और उनकी भी कहानी में इस ये जो जिस अस्पताल में आप लोग ट्रेन होंगे, अम, इस अस्पताल की बहुत ही लेगेसी है यार। आई मीन, यू मस्ट लर्न अबाउट दो स्टोरीज। तो महाराज जी ने एक बात बताई, एक महिला आई थी जिसको दिखता नहीं था, और महाराज जी के गुरुजी के पास आई कि हमारा कुछ करवाइए, आपके पास अस्पताल है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे तुम तो जन्मान दो, तुम्हारा क्या करवाएं। तो उसने कहा कि नहीं, जन्मान नहीं, हमको अभी दिखता था 2-4 साल पहले तक। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, महाराज जी टुक द इनिशिएटिव, एंड एज एज अ leader, he took a call and he asked the ophthalmologist that यार ये एक मरीज आई हुई हैं, 2 साल पहले तक बताती हैं दिखता था, अब नहीं दिखता है। एंड यू एंड आई नो एंड एवरीबडी नोज दैट ये हो सकता है कैटरेक्ट हो, या कुछ हो, ग्लाकोमा हो, हु नोज व्हाट इट वाज। सो somebody has to look into it. This lady goes to the hospital, got her IOL implant because she had cataract, और 1 महीने बाद फिर दरबार में आई गुरुजी के। तो गुरुजी कहे यार तुम्हें देखा है, और तुम इतने पास कैसे आए, तुम्हें दिखता नहीं था। तो कहती है ना, हम देख पाते हैं। तो उन्होंने महाराज जी को बुलाया कि अरे यार ये तो जादू हो गया। एंड दैट केस एक्चुअली मोटिवेटेड गुरुजी, कहा कि नहीं 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 नहीं, अब हम चलेंगे, देखेंगे जरा तुम क्या कर रहे हो। अरे यार ये तो जादू हो गया, एक अंधी महिला देख पा रही है, वाह। तो बेटा ऐसा ही है डॉक्टर गुप्ता, यही है जो एम्पैथी की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो कनेक्शन होता है ना, ह्यूमन कनेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल। हम कितना भी डेटा सेट घुसा दें अपने सिस्टम में, ये हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि you will be an individual who will decide when to use it, where to use it, and how to use it. Just think that this is yet one of the products that is available to you, and you decide when to use it. ये कहीं से भी आपको बाधित करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपकी सहायता के लिए बनाया गया। पहली बात तो ये है, और आपका बिल्कुल सही जो कथन है, बिल्कुल सही है। इसमें एम्पैथी हो ही नहीं सकती यार, दिल थोड़े हैं इनके पास। दूसरी चीज, जो डेटा और उसकी आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, आपने एक शब्द यूज किया था, कि देयर वाज अ वर्ड यू यूज्ड, जो भी इसमें है। सो व्हाट आई थिंक इज, जितना भी डेटा इसका है कैपेसिटी, उसके बेसिस पे ही ये एनालाइज करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये गलतियां करेगा और आप इसको बताओगे ना, जैसे यू विल राइट समवेयर, आप कहीं तो नोट लिखोगे ना, कहीं तो बताओगे ना कि भैया ये चेस्ट पेन लेके आया था पेशेंट, एंड इट टर्न्ड आउट दैट द पेशेंट हैड सब डायफ्रेगमेटिक पेन, and everybody was thinking that it was because of the heart attack, and it turned out that they had a basal pneumonia, lower lobe pneumonia, that can cause chest pain too. You will document somewhere in your note. This system gets it from there. और आपके बाद, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद मान लीजिए डॉक्टर शर्मा को या डॉक्टर सिद्दीकी को वही पेशेंट मिलता है, या वैसा ही पेशेंट मिलता है डाउन द रोड, उन दोनों को ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस भेज दी जाएगी कि साहब देखिए, रेयर है, आज तक एक ही केस हुआ है जो डॉक्टर गुप्ता ने डायग्नोस किया था, लेकिन दीज आर पॉसिबिलिटीज टू। तो इट इज़ जस्ट टू वाइडन आवर विंडो। जैसे हमारे, अब मैं होटल में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ एरो सिटी में, तो हमारे सामने एक वो पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है ना, सामने बिल्डिंग भी दिख रही है। अगर ये बिल्डिंग गिर जाए तो हमें एयरपोर्ट और भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा।
सो लाइकवाइज आपकी जो बात है इसकी लिमिट उतनी है जितना डेटा उसमें फीड हुआ है, बट प्लीज डोंट यूज दिस एज योर कंपेटिटर। ये आपके कंपेटिटर नहीं है, ये आपका बच्चा है, ऐसा सोच के इसको यूज कीजिए कि जैसे बच्चा ग्रो होता है ना, इसकी हेल्प कीजिए। और विश्वास कीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चा ग्रो होकर कभी मॉन्स्टर बन जाएगा और आपको खा जाएगा ना। ये अपने दिमाग में बच्चों हमेशा याद रखना, एंड डॉक्टर गुप्ता हमेशा याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी प्रोफेसर लाइक आई एम। मैं आपको सच बताऊं बच्चों, आप लोग को एक बात तो पता होनी चाहिए, मैंने भी सीपीएमटी लिखा था, हमारे समय में सीपीएमटी होता था यूपी के कॉलेजेस का, और मेरी रैंक वैंक नहीं आई थी, हमें यूपी में कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा था। तो आप लोग तो हमसे कितने बेहतर हो कि कम से कम आपको यूपी में कॉलेज तो मिला, हमको तो क्या बताएं। एंड सी द वर्ल्ड हैज चेंज दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टीच यू, बिकॉज I have learned something which perhaps is not available in your part of the world, and that's all it is. So you all are मेधावी छात्र, और ये जो प्रोडक्ट है ये आपके एक प्रोफेसर की तरह है। मान लीजिए कि जैसे डॉक्टर तिवारी को इनवाइट किया गया है लेक्चर के लिए, इसी तरीके से एआई को भी इनवाइट किया जाएगा आपकी प्रैक्टिस में। दैट्स ऑल इट इज। सो ग्रो दिस हैबिट ऑफ यूजिंग इट, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, आप चाहें या ना चाहें, इट्स कमिंग। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन डॉक्टर गुप्ता? No, sir. Thank you, sir. Sir, once again, sir, can you please close the PPT so that we can see you clearly in a full I'm screen? I'm so sorry. I'm so sorry. Thank you so much, sir. Can you guys see me? Oh, by the way, ये जो तीसरे आपको शायद देख रहे होंगे, विनय प्रकाश तिवारी, this is my elder brother. He is the reason why I am who I am. So he is from Bharat. He works for Indian Railways. Good morning, sir. Myself, Nipta Shrivastava. I am from BSc Nursing final year student. सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये सर कि मेडिकल साइंस में हम एआई को कहाँ तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन सर, आप एक क्वेश्चन बता रहे थे कि अगर मतलब कोई मशीन अगर किसी डॉक्टर को 24 आवर्स पहले ही ये बता दे कि वो उसका पेशेंट 24 आवर में डाइट करने वाला है या मरने वाला है, तो वो उसको बेटर केयर दे सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये कि उसने सब कुछ किया, बट उसके बावजूद अगर वो पेशेंट डेथ कर जाता है तो एथिकल कंसिडरेशन किसकी होगी? क्योंकि सर यहाँ उसने एआई ने तो बता दिया है, ऐसे अगर नहीं रहता है सर तो एथिकल कंसिडरेशन, क्योंकि सर जब हम मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट ही करते हैं तो सबसे पहले हम एथिकल कंसिडरेशन ही पढ़ते हैं। तो सर मुझे यहाँ जानना है एथिकल कंसिडरेशन किसकी होगी? मिस श्रीवास्तव, पहले तो आपको ये बता दूं कि बच्चों जो जो डॉक्टर बन रहा है यहाँ पे, ये जान लो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अ फिजिशियन अक्रॉस द ग्लोब is trained by a nurse. So nurses are the backbone of our medical science. I'm telling you, and this is the truth. I'll tell you why I said that. जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था मिस श्रीवास्तव, मैं पहला जब मेरा कोड ब्लू मैंने आईसीयू में अटेंड करने गया था, भाई पेशेंट हैड कार्डिक अरेस्ट एंड आई वेंट टू द बेड साइड एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी एंड I was about to have cardiac arrest because I had no idea what to do. और nurses मेरी तरफ देख रही थी, तो वही फ्रैनिंग जिसकी बात कर रहा हूँ, she was the charge nurse of ICU. She elbowed me and she said, CPR. मैंने कहा, oh yeah, start CPR. So they started CPR. CPR is cardiopulmonary resuscitation. So they started CPR. 2 मिनट बीता, एक नर्स बोलती है, doc, it's 2 minutes. So what do you want to do next? I said, so Franny again elbowed me. She said, atropine. So, yeah, give atropine. And then another nurse asked me, what dose? So utna mera presence of mind tha. Maine kaha, oh, the same usual dose, just give it. Because I had no idea what to do. So then they gave atropine and the code was run, patient survived. And today when I run the code like a hero. I command how to do it. But how I became who I am today is because of my nurses. So a big round of applause to all the nursing students and all the nurses across the globe. You guys are the reason why physicians are able to do their job. So thank you for bringing up this question. Now, to answer your question, कि जवाबदेही किसकी होगी?
तो देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, हम लोग जो है ना, हम आपको बताते हैं, कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ कि रामायण की जब कथा हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सीता जानकी जी आ गई थी और एकाएक सब दुनिया अच्छे से चल रही थी। एकाएक क्या हुआ कि अ, हनुमान जी के ऑफिस में एक समन गया, एक सीलबद्ध लिफाफा गया कि अरे भैया तुम्हारी हाजिरी बुलाई गई है, आओ। तो उन्होंने लिफाफा खोल के देखा कि कहाँ समन आया है, तो देखा भगवान श्री राम ने समन भेजा है। तो उन्होंने कहा अरे यार, इतनी इतनी मेरी इतनी ज़रूरत कि भगवान को कुछ लिखना भी पड़ा मेरे लिए। अरे भगवान ऐसे फ़ोन कर देते, हम आ जाते, या संदेश वाहक भिजवा देते। तो हनुमान जी दौड़ते हुए गए। तो क्या भगवान, हमसे क्या गलती हो गई कि आपको कुछ लिख के बुलाना पड़ा, आप जस्ट बोल देते हम आ जाते। तो उन्होंने कहा कि देखो हनुमान, दूर हटो पहले तो, तुम्हारा हमारा जो रिश्ता है वो अलग है। ये समन जो है वो यूनाइटेड नेशंस और वो मानवाधिकार विभाग से आया था, उनका एक तुम्हारे खिलाफ वो है, केस है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, जो भी हम करते हो आपके कारण ही करते हैं, आपसे पूछ ही करते हैं। कहा नहीं 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 नहीं, ये सब बात गलत है, ये कोर्ट में बात होगी, हम तुमसे कुछ बात नहीं करेंगे। कोर्ट बैठी, तो उसमें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि भैया इनका इनका जो व्हाट शुड आई से, इनकी जो गलती है, इनका जो क्राइम है, इनका जो क्राइम है वो ये है कि आप जब लंका जला रहे थे तो आपने तो ठीक काम किया था, लेकिन उस लंका में कई बच्चे भी थे, कई प्रेग्नेंट लेडीज भी थी, कई अच्छे लोग भी थे, सब जल के मर गए। तो आपने किया तो काम सही, लेकिन उसमें सही लोग भी मारे गए। ये आप पे दोष दिया जाता है कि इसका तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया देखिए, ऐसा है कि अब मान लीजिए कि कोई गाड़ी, कोई कार चल रही है रोड पे, और वो कार ने किसी को मार दिया, किसी को हिट कर दिया, वो आदमी मर गया। पुलिस कार को अरेस्ट करती है या चालक को? तो वहां पे बात है कि चालक होता है, लेकिन मार तो कार ने। तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसा है प्रभु कि हम तो कार हैं, चलाने वाले तो आप हैं। तो जो भी है, जिसको भी गिरफ्तार करना आप लोग डिसाइड कीजिए किसको करना है, अब हम क्या बोले। तो उसी तरीके से मिस्टर वास्तव, हम लोग फिजिशियंस हैं, हम लोग भगवान नहीं। और आई मस्ट टेल यू, वी डोंट सेव अ लाइफ और वी डोंट किल एनीवन, वी आर जस्ट द मीन्स। ये भगवान हम लोग के हाथों से करवाते हैं। द गुड पार्ट इज वी मस्ट डू आर 100%, वी मस्ट गिव आर 100%। हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर इतना आप करती हैं, बाकी पब्लिक जो समझे, जब वो देखेगी कि आपने क्या की है, उनको समझ में आएगा। अब नहीं समझ में आएगा तो क्या कर सकते भैया, अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान राम से पूछा जाएगा अयोध्या जाके, कौन लेगा। हम लोग अपना पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो ये है। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या एआई में मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि और भी सुधरेंगी, बट द रियलिटी इज वी मस्ट डू आर 100%, और बाकी हर इच्छा क्या कर सकते हैं। Good morning, sir. My name is Ram Kaudgave. I am first year MBBS student. I'm Sir, sorry, मेरा I did not hear your last name. Kaudgave, गौड़गावे। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। अरे वाह। सर तो मेरा पहला मेरे को क्या है कि ह्यूमन का जो एरर्स है ह्यूमन, वो फर्स्ट विजन ये है कि वो कम करना है। तो सर वाइस चांसलर सर ने भी कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की ब्रांच कोलैबोरेट हो रही है। तो हम इस ब्रांच में अगर एंटर करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कैसे इस ब्रांच में एंटर करें, क्योंकि मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा डिफरेंस है। हमें इंजीनियरिंग फील्ड हम उतना ज्यादा जानकारी नहीं है इंजीनियरिंग फील्ड की, तो हम उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सर। फर्स्ट स्टेप से बता दीजिए कुछ। वेरी गुड। सो गौड़गावे, राइट? यस। अच्छा मिस्टर गौड़गावे, कौड़गावे। से अगेन। कौड़गावे। कौड़गावे, कौड़गावे। ठीक है। आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? नांदेड़। नांदेड़। अरे वाह, नांदेड़ में बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज है यार। आई हैव बीन देयर, आई हैव लेक्चर्ड देयर। सो डॉक्टर कौड़गावे, पहली तो बात आपकी ये है कि क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी से मैरी करें, बिकॉज डॉक्टर साहब अगर मेरे को इजाजत हो तो मैं इनका जो, बिकॉज ही इज राइट व्हाट ही सेड, बिकॉज ही इज मेंशनिंग एनमेड डिग्री जो टेक्सास में शुरू हुई है हॉस्टन में,
that we had, and this which is also happening in our Kharagpur IIT and also happening in Kanpur, that we have got now these IITs are setting up their own medical colleges, and even in the Institute of Science is setting up its own medical college. And now there is a basically synergy being created between medical and engineering. And Houston, they are already started NMed degrees, and these institutions are also going to start NMed because they're going to be basically some sort of integration of medical and engineering over there. And these students, I said that this is something which is futuristic. So you can look at it that don't just go into the traditional subjects, but also look into the various possibilities which are coming. And AI would be one of them, but that it's not the end. There are a lot of, because a lot of equipment is being used and automation is being used in the hospital. So now engineering and medical, they are just going to be the line is going to be blurred. So that is basically his question. I just thought I'll clarify it. Thank you. Got it. So Dr. Singh and Dr. Kaudgave, आपको पहले बात एक बता दूं कि when this project started about 9 years ago, कि हम लोगों ने ये सोचा कि भाई IT is part of medicine, and I must tell you, आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कम्स टू द ED ER, आप पहला क्या करते हैं, उसका डेटा एंटर करते हैं. Where is it coming from? Technology. Then we make a wristband, print करते हैं. Where does it come from? Technology. IV लाइन डालते हैं, कहाँ से आता है? बायोटेक्नोलॉजी. EKG करते हैं, कहाँ से आता है? टेक्नोलॉजी. दवा एंटर करते हैं जो कि नर्स पढ़ेगी और रिलीज करेगी और देगी, कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी. उसके भी पहले आ जाइए, मरीज जब घर से निकला, रोड पे चल के, रोड किसने बनाया? टेक्नोलॉजी. गाड़ी किसने बनाई? टेक्नोलॉजी. सो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी बट नथिंग एल्स. The only thing we as medical professionals we do is that we apply our brain and use the technology. तो डॉक्टर कौडगावे, पहले तो बात ये जान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो बात की है, डॉक्टर सिंह ने, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, आई एम पार्ट ऑफ इट, और मैं उनको भी लेके आऊँगा. उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ सेन गुप्ता. ही इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आधार कार्ड प्रोजेक्ट. जो आप आधार कार्ड लेते हैं, ही इज़ द वन हु स्टार्टेड इट, डिड इट एंड फिनिश्ड इट. So मैं डॉक्टर सेनगुप्ता को भी लेके आऊँगा to lecture you guys. He is a technologist, by the way. He's a hardcore engineer. He is the board member of Kanpur IIT Medical College part of it. And I am one of the advisors on that committee. So I'm very well aware of Delhi IIT, Kharagpur IIT, Kanpur IIT. अभी मुंबई वाला almost 30% तैयार है, वो भी शुरू हो जाएगा. और उसके बाद the next project is in BHU. तो इसलिए किया गया है डॉक्टर कौडगावे, इज बिकॉज वी नो, knowingly or unknowingly, technology is part of medicine. But why do we have such a separation? आप टेक्नोलॉजिस्ट को कभी भी बोलेंगे ना कि भाई यार मुझे ये बना के दो, you know what they will say? I live in Silicon Valley. I live in California, in Silicon Valley, the hub of technology of the world. सारी कंपनीज वहीं पे. और वहाँ पर बस वो लोग यही बोलते हैं कि भैया आप एक पेपर पे लिख के हमको दे दो कि आपको चाहिए क्या, एंड देन आई कैन डिज़ाइन इट. बट इफ आई से ओ इट शुड बी हियर, लंग इज़ हियर, हार्ट इज़ हियर, ब्रेन इज़ हियर, वो कहते हैं ऐसे हवा में ना दिखाओ भाई, तुम बना के दो, पेपर पे लिख के दो, तो फिर हम बना देंगे. सो द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी मैरिड विथ मेडिकल साइंसेज. वी डोंट रियलाइज इट हाउ क्लोज वी आर. एंड डाउन द रोड आई विल ब्रिंग सम speakers who will make this very clear. जैसे मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर देवी शेट्टी. I don't know how many of you know. Devi and I have been working together for over 20 years now. उनका एक अस्पताल का सिस्टम है, उसका नाम है नारायणा हेल्थ. पहले नारायणा हृदयालय होता था, अब नारायणा हेल्थ है. एंड I go and do service at different hospitals that we have. He's a big fan of technology. I will bring him to you guys too. He will come and lecture you guys too, either virtually or physically, I don't know. Lekin the point is, we have already been married, we have been living together for so many years, but thinking that we are from different field, we are different facets of the world. No, that's not true. This is the right time, this is the high time that we should know each other, we should start sitting with each other, we should live with each other and start thinking in a one synchronous way. And that is the future of medicine. Did I answer your question, Dr. Kaudgave? Yes, sir. All right.
Thank you. Thank you. And thanks for clarifying the question, Dr. Singh. Thank you so much. Sir, what I actually I was going a little beyond it. I said that don't restrict yourself. There now this NMed degree is going to come. So it's not only MBBS, it is basically blending. It is engineering and medical degree. So it is an NMed degree. So you can even now venture into it because we got a Maharana Pratap Institute of Technology just next door to us in Gorakhpur. And we are now thinking of blending and trying to integrate both with the medical college. So I said that now this is the future. So if we start thinking now, maybe 5-6 years down the line, we can basically venture into these engineering and medical combined together, and maybe UGC might also be flexible and change it, and we can have NMed degrees also. So what happens is you get into a niche area where you will not have much of competition, and you can have a better opportunities rather than going into the routine what we have got over here, that you become a practitioner, you become a hospital specialist somewhere over there. But then you can get into the frontiers of science and technology, and this will propel our country to the next level where we can basically look into being amongst the top league. So just think out of the box. That was the whole idea which I shared with them. Thank you. Yeah. So first of all, बच्चों देखो यही परेशानी होती है हमारे और people like Dr. Singh. These folks are different क्योंकि ये लोग different level पे काम करते हैं ना. ये इनका लीग ही अलग है. इनको वो चीज़ें पता होती हैं जो आज से 5 साल बाद आने वाली हैं, और हमको वो पता होती है जो हम कर रहे होते हैं. So one thing I must tell you guys, majority of us have a very good eyesight. जैसे हम लोग कलर्स देख पाते हैं, वाइट देख पाते हैं, ब्लैक देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंट चीज़ें देख पाते हैं, वो दीवार जो है वो ओपेक देख पाते हैं, लाइट देख पाते हैं, डार्क देख पाते हैं. So we have very good eyesight. And those who don't have good eyesight, they go to the doctor and get it corrected to 20/20, and we make it happen. So 99% of us have very good eyesight, but very few of us have vision. And there is a huge difference between eyesight and vision. And Dr. Singh is perhaps one of the visionaries because these are the folks who designed the system. So when he says something and you guys don't understand, please ask him, sir, what do you mean? I did not understand. And be open, because see, ये लोग बहुत कम मिलते हैं, लोग बहुत busy लोग हैं. So guys, ask questions, make sure that you understand, and then only leave them. क्योंकि एक बार निकले तो फिर एक आध सप्ताह के लिए गायब. इसलिए समझा करो इनसे. Even I knew what the creation of these institutions are because I'm one of the part of the creating team, but I did not know about this medical engineering degree together. This is news to me. Anybody else? ये बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई. दीजिए माइक. Hello. Sir, good morning. Myself Ishan Mishra. I'm a student of First Prof. सर जब हम लोग फर्स्ट डे इंस्टीट्यूट में आए थे तो हमारे जो टीचर्स थे, अरविंद सर, प्रदीप सर, उन लोगों ने बेसिकली ये बोला था कि जब तुम 4.5 साल 5.5 साल बाद जब इस इंस्टीट्यूट से बाहर जाओगे तो तुम्हारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम उन लोगों को ट्रीट करो जिनको बेसिक जो नीड है वो नहीं मिल रही है. मतलब ग्रामीण अंचल से हम लोग को शुरू करना है. और सर हम लोग जैसे जान रहे हैं कि इंडिया में जो 65% पॉपुलेशन है वो तो सर विलेज में रिसाइड करती है. सर सभी लोगों ने बात की लेकिन किसी ने ग्राउंड लेवल पे ये नहीं सोचा कि एआई को आप विलेज में कैसे इंप्लीमेंट करोगे जहां पे आप बेसिक जो मेडिसिन होती है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो वहां पे आप एआई कैसे करोगे? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर मिश्रा. और आप हैं कहाँ से वैसे भारत में? सर जस्ट यस सर. हाँ, कहाँ से हैं भारत में? सर माई सेल्फ फ्रॉम आजमगढ़. सर ये बेसिकली एक अर्बन एरिया ही है बट उतनी ज्यादा उसमें फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइडेड है. नहीं, सर नहीं, हम लोग परसों कल गए थे कैंप पे, वहां पे सोनबरसा जो कि हमारे बगल में एक विलेज है. सर वहां पे बेसिक पैरासीटामोल लेने के लिए भी वो मनी नहीं था. सर हम लोग एआई कैसे यूज करेंगे वहां पे? बहुत सही बात. तो डॉक्टर मिश्रा, पहली तो बात आप ये जान लीजिए कि एआई इज नॉट ओनली टू ट्रीट, एआई इज टू प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है. जैसे आप जब पैदा हुए होंगे, अपने पेरेंट्स से आप बात कीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपके ग्रह नक्षत्रों को देख के वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हॉरोस्कोप, राइट? तो उससे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भैया ये बच्चे का क्या होना है. दिस इज अ मान्यता.
और ये हॉरोस्कोप बनाने वाले एक मैथमेटिशियंस होते हैं, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ ग्रह नक्षत्र दे कैन टेल यू ओके ये बच्चा ये करेगा वो करेगा, एंड अगर उसमें कुछ गलत है तो वो बताते हैं कि इसमें ये पूजा करवा लें, ये सही हो जाएगा। वो दोज हु बिलीव इन इट दे डू इट, दोज हु डोंट बिलीव इन इट दे बिकम केयरफुल। टू आंसर योर क्वेश्चन, AI is not about treating after the damage is done. AI is all about, like for example, there is something called medical genomics. मेरी एक कंपनी है, I invest in companies too. Medical genomics is a branch of science and medicine where it is just like horoscope. आपका एक ब्लड सैंपल लेंगे, वी रन 21 पैरामीटर्स ऑन दैट। आप लोग को कभी अगर मौका मिले तो आप 23andMe एक कंपनी है जो गूगल के फाउंडर हैं, उनकी वाइफ की कंपनी है, एंड आई एम पार्टनर इन दैट कंपनी, आप उसके बारे में पढ़िए। तो डॉक्टर मिश्रा करते क्या है हम लोग ना, कि हम लोग सैंपल लेते हैं ब्लड का, based on your family history, based on your current practices, what you're doing, and based on what you want to become. We put all those things together and we can tell you. It's again, don't quote me on that. We are still in the process of getting the accurate results, but my goal is to tell you exact time, exact year, date, time, and second, that based on your history, if you don't change your practice, you'll have a heart attack at this moment in your life. You'll have a stroke at this moment of your life. You'll have cancer at this moment of your life. What cancer? Which organ will be involved? So, the world is changing, and believe it or not, in 5 to 7 years from now, we will know about ourselves way more than what we know today. Now, to answer a specific question you have raised, कि गांव में जहां बिजली नहीं है, पैरासीटामोल खरीदने की जो कि 10 पैसे की दवा है, उसके पैसे नहीं है, और आप एआई की बात कर रहे हो, तो एक तो यूज एआई का डॉक्टर मिश्रा ये है कि जो हमारे पीएचसीज है ना, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिनसे आपका कोलैबोरेशन है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वी नीड टू एक्टिवेट देम, वी नीड टू एम्पावर देम, जो कि वहां जाके एक्यूरेट हिस्ट्री लेके आए, एंड देन वी कैन देन मेक अ पॉकेट कि यार ये एरिया है, जैसे आप जहां गए थे जहां पर कि पैसे नहीं, वी मस्ट नॉट लीव दैट अपॉर्चुनिटी। अरे यार कितना पैसा लगता है, 1,000 2,000 रुपया, 5,000 10,000 रुपया उनको बेसिक मेडिकेशन देने के लिए, और हम तो ये चाहेंगे कि उनको ऐसा हेल्थ केयर दिया जाए कि उन्हें मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। द क्वेश्चन इज वी नीड टू नो द पॉकेट्स। तो हमारे जो पंचतंत्र है ना आपका, उसको अच्छे से समझिए। अभी आपका एसपीएम का शायद पोस्टिंग नहीं हुआ है, आपके एसपीएम के जो टीचर्स हैं उनसे ज़रा बात करें। वो एक बुक हम लोग पढ़ा करते थे, पार्क, आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल देयर, डॉक्टर पार्क की एक बुक थी एसपीएम की। एनीबडी कैन टेल मी इफ डॉक्टर पार्क की बुक आज भी है या नहीं? आई थिंक इट इज देयर, इट्स अ बाइबल ऑफ एसपीएम। यस सर है। हाँ ठीक है। तो 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 आप ऐसा करें कि उन चीज़ों को लिखिए और अपने सिस्टम में रजिस्टर कीजिए। AI is not about treating after damage is done. AI is about predicting something, avoiding something, telling them what they can do to avoid it, and then if God forbid if something has happened, we can treat it. और ये सब, these are very low hanging fruit, Dr. Mishra, right? Yeah. So these are very low hanging fruit. I'm glad that you have picked up that part of it, which is very common. Very few of us even look at those problems like कि यार क्या कर सकते हैं। तो बेटा आप जरूर, and I'm glad that you are a member of Backbenchers Society of India. I was one of them. Good morning, sir. Myself, Manglesh from MBBS batch. Sir, you mentioned that the AI will learn as it makes mistakes. So there is a set data set. So what will be better to make it open source so that anyone in any corner of the world could update the code? But then again, anyone with a laptop could put in wrong codes and put in wrong data. Or the other option will be some people have the access to it, but then again, updating it will be a long process. So what will be better? सॉरी मैं आपका नाम कैच नहीं मंगलेश कुमार। मंगलेश जी, अच्छा। Let me. Sir, I'm in the class. Can I call you back? Bye. Sorry about that.
मंगलेश जी, आप ऐसे सोचिए, कैन आई कॉल यू डॉक्टर कुमार, बिकॉज दैट विल बी योर नेम, राइट? सो Yes, डॉक्टर sir. कुमार, लेट अस पुट इट दिस वे। आप जब एग्जाम लिखने जाते हैं ना, अभी पता नहीं कितने महीने हो गए आपके क्लासेस के? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? कितने दिन का बैच हो गया आपका? 1 साल? ओ वाह! एक महीना। 1 महीना? ओ, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नाम के दानवों को आप मिल चुके हैं। तो ये ऐसे दानव हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ के आए हैं। नाउ यू विल बी हियरिंग एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंड देन यू विल से वेट अ मिनट, आर वी टॉकिंग इंग्लिश? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो ऐसे जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना डॉक्टर कुमार, तो आप आंसर लिख के आएंगे अपनी उत्तर पत्रिका में, और जो उसमें कई चीज़ें सही लिखी जाएंगी, और आप ही के कई बैचमेट्स ऐसे भी होंगे मेरी तरह। मैं तो विश्वास रखता था पेज पे पेज भरने में, चाहे जो लिखूं। एंड आई टेल यू, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। एक बार पैथोलॉजी का टेस्ट था और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मुझे ये हुआ कि एसए के लिए कोई एक चीज़ पढ़ लो यार, तो मैंने पढ़ लिया पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। एसए एकदम डायग्राम के साथ मैंने तैयार कर लिया था। एंड माय बैड लक, द क्वेश्चन आस्क्ड वाज मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। एंड व्हाट हैपेंड वाज आई रोट पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मैंने हर एक डायग्राम, पैथोलॉजी, स्लाइड सब बना दिया, और लास्ट में लिख दिया था ऑल द अबव आर नॉट फाउंड इन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और मुझे 10 नंबर में से 2.5 नंबर मिले थे। फेल हो गया था एग्जाम में। लेकिन ऐसे ही आपके कई मित्र होंगे मेरी तरह, जो इस एकेडेमिया के लेक्चर में या इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, सही या गलत। आपके प्रोफेसर्स डिसाइड करेंगे कि वो सही है या गलत है। आपकी मार्क्स जो मिलेंगे उस पे मिलेंगे, उस मेरिट पे मिलेंगे। उसी तरीके से डॉक्टर कुमार, कई लोग जो अगर इसको ओपन स्पेस कर भी दें, और कई लोग जो इसमें योगदान देंगे, देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट। नॉट एवरीथिंग इंटर्ड विल बी इंटीग्रेटेड। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग समथिंग एंड गेटिंग मार्क्स आउट ऑफ इट। मैंने भी तो पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड लिख दिया था, सही ही था, लेकिन गलत जगह पे था। थोड़ा सा नंबर मिल गया, लेकिन हम पास नहीं हुए एग्जाम में। तो इसी तरीके से अ, आप एकदम चिंता ना करें। एकदम सुनियोजित कार्यक्रम है ये। जिसको जो लिखना है लिख ले। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ फिजिशियन लिविंग इन बे एरिया, सिलिकॉन वैली, आई कैन अश्योर यू nothing will pass until it is right. Did I answer your question, Dr. Kumar? Perfect. Good afternoon, sir. Myself, Rishabh Raj, and I am first year MBBS student. सर माय क्वेश्चन इज सर, जैसे आईआईटी में सोचा जा रहा है कि एनमेड करके एक कोर्स लाया जाए, तो सर क्या मेडिकल कॉलेज में ऐसा मॉडिफाई करके एमबीबीएस कोर्स को नहीं किया जा सकता कि 2 मंथ 3 मंथ का जिसमें ड्यूरेशन, और उसमें हमें पढ़ाया जाए एआई के बारे में, या आईटी सेक्टर में कैसे हेल्प आएगा हमारा, ऐसा कुछ करके सर। थैंक यू सर। डॉक्टर राज, आप कहाँ से, बिहार से हैं? यस सर, आई एम फ्रॉम बिहार। कहाँ से सर? बेगूसराय। बेगूसराय, अरे क्रांतिकारी जगह से हैं आप। चलिए ठीक है। डॉक्टर राज, ऐसा है कि चक्कर ये है यार कि आपकी जो बात है बहुत अच्छी है कि अब हम जानते हैं कि जो चीज़ें पढ़ानी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जान भी गए कि यही चीज़ें पढ़ानी हैं। तो क्यों नहीं हम बच्चों को सीधे एक साथ बैठा के घुट्टी पिला दें। वो कौन सी होती थी वो, जो कोई भी घुट्टी, जन्म घुट्टी, कि भैया पी लो, यही पीना है तुम्हें, अल्टीमेटली यही पीना है। लेकिन चक्कर यहाँ पर ये फंसता है डॉक्टर राज, की जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो आप जितना भी जल्दी करना चाहें, जानते हैं कि बच्चा ऐसे ही, एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ेंगे अभी आप एनाटॉमी में, तो आपको पता चलेगा एम्ब्रियोलॉजी में ग्रोथ ऐसे ही होता है, इतने समय पे होता है। और हम जानते हैं किस रास्ते जाएगा वो, और कितने समय पे लेबर होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, देन डिलीवरी। आपके ज्ञान चाहे जितना भी हो, लेकिन इस प्रोसेस में लगेंगे 9 महीने ही। आप जानते भी हुए, गिव मी अ सेकंड। यस, I'm in a meeting. Can I call you back?
Sorry about that. Hello. Yeah, I'll call you back. All right. तो जो भी हमारा ज्ञान है ना, जो भी हम जानते हैं एआई के बारे में भी, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, इसका जो इंसेप्शन है, जो इसका ग्रोथ फेज है, वो उतना समय लगता ही है। अभी तक हमारा ज्ञान यहीं तक विकसित है डॉक्टर राज। हो सकता है कि हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें कि बच्चे को 9 महीने की जगह 2 महीने में ही पैदा कर दिया जाए। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो 9 महीना ही है सर, तो उसमें समय उतना ही लगना है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हर एक चीज का एक रास्ता है, उसका इसका रास्ता 9 महीने का ही है। जो आप बता रहे हैं 2 महीने में नहीं हो सकता। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था अभी। मैं नमस्ते। डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी जी। ये एलन मस्क ने अभी मतलब रिसेंटली ह्यूमन ब्रेन में एक चिप इंसर्ट किया, और कुछ उन्होंने और भी इन्वेंशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्पेस एयरक्राफ्ट ला रहे हैं, जैसे 30 मिनट में इंडिया से अमेरिका। तो इसमें एआई का यूज कैसे हो रहा है? 30 मिनट में नहीं डॉक्टर सिद्दीकी, 12 मिनट में है। 12 मिनट, सॉरी सर। जी। हाँ। इलॉन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने टेस्ला 2012 में खरीदी थी। मेरे पास अभी डॉक्टर सिद्दीकी 5 गाड़ियां हैं, और सारी टेस्लाज ही हैं। हम गैस वाली गाड़ी चलाते ही नहीं। गैस मतलब कि वहाँ पे पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन कहते हैं, तो गैस कहते हैं वहाँ। डॉक्टर सिद्दीकी ऐसा है कि ये चिप वाली जो बात आपने बताई मुझे पता नहीं है। और Elon he loves making these kind of comments. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014-15 के दशक में आए थे कैलिफोर्निया, आई वॉज वन ऑफ द members who took him around, and I took him to Tesla headquarters also. देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरी गाड़ी जो है, मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना खुश हूँ अपनी गाड़ी से कि ऑपरेट करता हूँ 24 घंटे, 26 घंटे, 40 घंटे, कभी कभी 8 घंटे। थक जाते हैं, ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, राइट। मेरी गाड़ी इज सेल्फ ड्राइविंग कार। it you just put the address, it takes you home. You just put the address, it takes you to hospital. You put the address, it takes you to a restaurant. It doesn't ask you anything. It doesn't ask you a single question. It just drives you. As a human, when I'm driving the car, if I'm sleeping, I can hit people. The car does not hit. And it's all about आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो चिप वाली बात मुझे नहीं पता है, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट ये बता रहा है, सी इफ यू लुक एट द अर्थ, जो अर्थ है वो गोल है ना, तो आप अगर अर्थ के सरकमफरेंस में जाएंगे तो एक एक्स डिस्टेंस आपको कवर करना है, राइट। लेकिन अगर आप देखें कि अगर दो एंड्स को अगर हम एक सर्टेन हाइट पे चले जाएं और स्ट्रेट आके नीचे आ जाएं, इट विल बी वे लेसर देन द सरकमफरेंस, एंड दैट इज द होल पॉइंट। आप अगर कभी फ्लाई किए हों तो अगर आप एयरबस या बोइंग में जाएंगे तो बोइंग जाता है 30,000 35,000 फीट, और वहीं पे अगर मैकडॉनल्ड्स डगलस एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें पंखे लगे होते हैं, जो एयर इंडिया भी 2-3 प्लेन्स ऐसे रखा हुआ है, वो कम हाइट पे जाते हैं, तो दे टेक मोर टाइम। द सेम बनारस से दिल्ली की दूरी वो लोग 1.5 घंटे में तय करते हैं, और हम बोइंग वाले जो हैं वो 50 मिनट में करते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, द हाइट, and that is the principle he's talking about. It's not about speed only, it's about the height also. He will go to the space and come back. That's the whole idea. ठीक है ना? Read about it. It's very nice trajectory that he's proposing. और इलान के बात को ज़्यादा आप सीरियसली मत लीजिए, वो ऐसे बोलता है, वो अभी आने में टाइम है उसके। Thank you, sir. So there are a few more questions, but yes, due to time constraint, we have to conclude the session. But we would love to have you again and again to lecture us, to guide us, to interact with us and our students. So as we bring this incredible session to close, I would like to express my sincere gratitude to everyone who made it such a meaningful and impactful event. First, to our distinguished guest lecturer, Dr. Vijay Tiwari, sir, thank you for sharing your profound insight on the transformative role of AI in healthcare. Your ability to simplify complex concepts while offering practical perspective has left us with clearer vision of the future of medicine. Your vast experience and innovative contributions inspire us to think beyond the conventional and embrace change
with confidence. We are truly honored, sir. Thank you very much. थैंक्स पूजा एंड अगेन आप एक काम करिएगा, जो भी क्वेश्चंस हो उनको कंपाइल करके अगर एक ईमेल बना के मुझे भेज दें, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड Sure, if sir. Definitely. and if not then whenever we talk next we can address those questions. But बच्चों आपको एक बात जरूर, I will leave you with one thing, one thought that my Guruji, my medicine professor, his name was Dr. Joy Philip. मैं जब भी उनको देखता था, आई जस्ट टेक 2 more minutes, मैं जब भी उनको देखता था ना कॉलेज में जब आते थे वो मेडिकल कॉलेज में, he'll have that long white coat और सुपरमैन की तरह उनका कोट लहराता रहता था and he will be smiling. तो मैं उनसे पूछा एक दिन कि सर, when I got the gold medal in medicine, I was close to him, so I said, you know what, why are you so happy all the time? Don't you have problems in your life? I mean, how can you be smiling all the day? And he told me one thing. He said, Vijay, when I enter in the hospital, I do a prayer. And that prayer keeps me smiling. एंड बच्चों वो प्रेयर आज भी, मैं जब भी अस्पताल में जाता हूँ तो मैं वही प्रेयर आज भी करके जाता हूँ. एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट प्रेयर विथ यू गाइस. एंड द प्रेयर वाज, ओ गॉड, आई नो that I know nothing, but still you have decided to put this white coat on my shoulders. You must have thought something about me. Please help me help those who are in pain, and please make sure that nobody gets hurt by me. And if you Thank have you once that, again, sir. and if उस तरीके का संपूर्ण शरणागति अगर है आपका आपके मरीजों की तरफ, sky is the limit for you guys. And I thank you all, especially Rao sir and Dr. Singh, for giving me this opportunity to share some of my thoughts, and looking forward to meet you guys in person soon. Thank you so much, sir. Thank you very much to consider the question and taking out time. And to our esteemed Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh, sir, thank you for being the driving force behind initiative like these. Your vision and commitment for fostering progress within our institution serve as a constant source of encouragement for all of us. To all the respected dignitaries present over here, like Principal Sir, Registrar Sir, and faculties, your dedication to nurturing a learning environment that bridges academics and real-world advancement is deeply appreciated. Lastly, a big thank you to all the students and organizers who participated wholeheartedly and made this session dynamic and engaging. Together, let's take the lesson learned today and apply them to shape a better future for healthcare. Let us continue to strive for excellence. Thank you all once again and have a wonderful, wonderful day ahead. Namaste. Thank you so much all, and looking forward to meet you guys again. So I'm going to disconnect because I have to head over to another meeting. Nice meeting Thank you you, all. sir. Unless you Thank have anything for me. Those who have asked questions, thank you. Those who have not asked questions, learn to ask questions. Namaste all. Thank you, sir.